أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ الحمدللہ جی، آج ہم سورہ آل عمران کے آیت نمبر 121 سے یعنی 13واں رکوع سورہ آل عمران کا، سورہ آل عمران 20 رکوع ہے۔ یہ اگلے جو 8 رکوع باقی ہیں نا، ان میں 6 رکوعوں میں غزوہ احد کے تعلق سے بہت سے احکامات ہیں، بہت سی آیات ہیں۔ تو یہاں سے یہ غزوہ احد اس کے متعلق سے یہ ہم آج کا ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا سی 2 باتیں ہم نے پیچھے والی یاد رکھنی ہے کہ ہم نے پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تقوی کا حق جیسے ہے اس طرح تقوی کرو۔ اور پھر دوسری بات حق تقاتہ ہی، اور پھر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن کو لے کر دنیا میں چلنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والا کام کرنا ہے۔ یہ اس امت کو تفویض ہو گیا ہے یہ والا کام۔ اور پھر یہود کی جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے لیڈر ہم ہیں، وہ تھے، اللہ نے بنایا تھا ان کو، لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھتکار کر اس امت مسلمہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ کام دے دیا گیا کہ اب آپ نے لیڈ کیا ہے کہ کن تم خیر امت اخرجت، یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لیا تھا۔ اور پھر پچھلے رکوع کی یہ جو آخری آیت ہم نے پڑھی تھی، آخری آیت سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو ان کی جو تدبیریں ہیں، لا ید وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وہی صبر والی بات اور تقوی والی بات، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی تدابیر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گی۔ شرطیں اللہ پاک نے رکھ دی ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، یہ شرط ہے کہ اگر تم صبر والے ہوگے اور تقوی کے معیار پہ ہوگے تو پھر کسی کی کوئی تدبیر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہ غزوہ احد سے نکلنے کا منظر اللہ پاک یاد دلوا رہا ہے۔ وَإِذْ بہت دفعہ ہم نے پڑھا، وَإِذْ کا لفظ جب اللہ پاک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کو یاد کرنا، اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ خطاب ہے۔ غدوت، غدون کہتے ہیں، بالغدو والا سال قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے۔ غدو کہتے ہیں صبح کے ٹائم کو، دن کے پہلے حصے کو، ارلی کے حصے کو غدون کہتے ہیں۔ اور بھی لفظ استعمال ہوئے غدون، اس کے لیے اپوزٹ اس کا آصال بھی استعمال، غدو والآصال۔ تو غدو کہتے ہیں صبح کے ٹائم کو، غدون اس کو کہتے ہیں۔ تو جب اس کو ورم وَإِذْ غَدَوْتَ، جب صبح صبح آپ نکلے تھے، مطلب اگر تو نکلا تھا، ترجمہ تو نکلا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خطاب ہے تو ہم اس لیے اردو میں ہماری عزت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پلورل کا، رائل پلورل اس کو کہتے ہیں، پلورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، جب آپ اس وقت کو یاد کرو جب آپ صبح صبح نکلے تھے، من اہلک، اپنی اہل میں سے، اہل کا ترجمہ اپنے گھر میں سے، اہل تو گھر وال، اپنے اہل میں سے نکلے تھے۔ تو بوّئ المؤمنین، بوّا یبوّئ کا مطلب ہوتا ہے وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی اسرائیل، کہیں بوّا یبوّئ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پہ ٹھکانہ بنانا، کسی جگہ پہ بٹھانا، کسی جگہ پہ سیٹ کرنا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے سیٹ کر دیا تھا۔ ایسے حضرت آدم کے لیے کہ جب اس کو بھی ہم نے ہوا ہے، اسی طرح تو اس کا مطلب بوّا یبوّئ کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ
ठिकाना बना देना, किसी जगह बिठा देना, किसी जगह सेट कर देना। क्या तर्जमा होगा? तो बव्विउल मोमिनीना, तू मुजारे है ना, तो बव्विउ, तू सेट कर रहा था, तू बिठा रहा था, तू मुतय्यन कर रहा था मकाइद लिल क़िताल। मकाइद, मकाइद कहते हैं बैठने की जगह, कुर्सी को हैं, मकाद कहते हैं ना, तो उसकी जमा है मकाइद, कुर्सियां। लिल क़िताल, क़िताल किताल के लिए, जंग के लिए, कि जब तो बबियुल मोमिनीना, मोमिनीन को तुम बिठा रहे थे उन सीटों पर, उन जगहों पर, लिल क़िताल, जंग के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सुबह घर से निकले और फिर ओहद के मैदान में पहुंच के, यहाँ पे तफसील तो कुरान में तो इशारतन बहुत माइन्यूट डिटेल तो कुरान पाक में बयान नहीं की जाती है, जो ज़रूरी बात होती है वो बयान की जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले, हालांकि सारे आप जो वहाँ पे गए हुए हैं, बहुत दूर नहीं है वहाँ पे ओहद का पहाड़, बहुत दूर नहीं है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे ख्याल में एक, क्योंकि लश्कर था, उनकी ज़रूरियात थी और जमा करना था उनको, और मैं ख्याल में दूसरे दिन, वो एक दिन रस्ते में लगा, रात भी शायद आई थी। बहरहाल तो सुबह सुबह निकले, ये सुबह का वक़्त है, ये अल्लाह पाक बयान कर रहा है। ये कब है? ये शवाल की कोई तारीख है, 7 शवाल है या 8 शवाल है, 3 हिजरी को ये वक्त है। अल्लाह पाक ने वक्त को मेंशन किया है, गदावता, सुबह सुबह का टाइम है, अल्लाह ने बड़ी खसूसी वक्त को अहमियत दी है अल्लाह पाक ने, वरना आमतौर पर बयान करने में किसी वक्त की अहमियत, अल्लाह पाक उस सुबह सुबह को भी बयान कर रहे हैं। सुबह सुबह निकले थे और फिर सारे मिन अहल का, अपने अहल में से निकले थे। उस दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के घर में थे, वो रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयशा के घर से निकले थे। अभी आगे हम बयान करते हैं, ये जो ज़ेरा पहन कर निकले थे ना, हज़रत आयशा के घर में हुजरे में तशरीफ लेके गए थे, आगे बयान करते हैं, आगे जिक्र आएगा उसका। तो ज़ेरा पहन के निकले थे, तो वो आयशा के घर में ज़ेरा पहन कर निकले थे इसके लिए। तो ये जंग के लिए सेटिंग कर, ये वल्लाहु समीउन अलीम, पहले तर्जमा करने, वल्लाहु, और अल्लाह समीउन, खूब सुनने वाला है, बहुत आला, अलीमुन, खूब जानने वाला है। ये मुबालगे के सीगे हैं, जमीलुन, हसीनुन, फ़ईलुन के वजन पर आने वाले सीगे जो, ये मुबालगे के सीने। और इसका तर्जुमा क्या है कि अलीम, आलिम तो एक आदमी ने बात जान ली, उसको आलिम कहते हैं। अलीम उसको कहते हैं कि ये उसकी अपनी सिफत हो जाती है, पक्की, हसीन जैसे है, हसीन पक्की, एक आदमी हसीन है तो बस हसीन है ना, उसमें पक्की, उसमें के अंदर मौजूद है। इसी तरह अलीम भी अल्लाह खूब जानने वाला है। ये अल्लाह की, ये ग़ज़वा ओहद के मुतल्लिक़ की आयत है। और जैसे मैंने कहा कि अगले 6 आयत नंबर 180 तक, ये 120 नंबर आयत है, 121 नंबर आयत है, 60 आयतें, दरमियान में कुछ और बातें भी हुई हैं, लेकिन 180 आयतों तक ये अल्लाह पाक इस ग़ज़वा ओहद को रेफर करते रहेंगे मुख्तलिफ तरीकों से। तो ये 6 रकू हैं, इसमें लगेंगे। तो ग़ज़वा ओहद, तो ज़रा सा इसका बैकग्राउंड, क्योंकि आगे जो जिक्र आ रहा है वो बैकग्राउंड पता होगी तो फिर वो बात हमें समझ आएगी। बैकग्राउंड तो आसान है, हमें पता है, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी को पेश आया, और ग़ज़वा बदर में ओरिजिनली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे उस काफ़िले को रोकने के लिए, जो अबू सुफियान काफ़िला लेकर गया था और वो वापस आ रहा था, उसको रोकने के लिए निकले थे। कि उनका ये ख्याल था कि उन्हें खबर हो गई थी कि उस काफ़िले का जो माल होगा वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा करके उस काफ़िले को ही रोकने का फ़ैसला कर लिया, और अबू सुफियान उस काफिले को लेकर जा रहे थे। और ग़ज़वा बदर की वजह हमें पता है कि कैसे पेश आई थी। फिर जब ये निकले तो उनको खबर होगी थी मुशरिकीन मक्का को कि मदीने के मुसलमान जो है काफिले पे हमला करने का या उसको रोकने का या उस पे इरादा रखते हैं, तो उन्होंने ये लश्कर भेज दिया। बड़ा लश्कर था। और फाइनली जो पहुंचे थे बदर में वो तो 1000 ही रह गए थे, लेकिन ओरिजिनली बड़ा लश्कर निकला था मक्का से, और उसका लीडर अबू जहल था, क्योंकि अबू सुफियान तो गया हुआ था उधर उस काफिले के साथ। वो काफिला अबू सुफियान को भी खबर हो गई थी, लेकिन वो किसी और रास्ते से काफिले को लेकर निकल गया, और ये काफिला जो है
मतभेड़ होगी मुसलमानों के साथ। इसमें आगे कुरान पाक में मेंशन है, मुसलमानों की बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि हमें वो वाला काफिला मिले, तो लेकिन अल्लाह पाक ने ये जंग वाला काफिला दे दिया। ये कुरान पाक में आगे मेंशन हो गया, अल्लाह पाक वहां तक हम पहुंचाएं तो वहां पे जिक्र करेंगे। और फिर ये काफिरों को भी जब खबर हुई थी, जो ये लश्कर आया था काफिले को बचाने के लिए, 1000 से ज्यादा लोग थे, बहुत से लोग उनमें वापस हो गए थे। उन्होंने भी अबू जहल को कहा था कि हम वापस हो जाते हैं, हमारा काफिला तो बच गया, अबू सुफियान काफिला लेकर निकल गया, अब हमें मुसलमानों के साथ। लेकिन उन्होंने कहा हम निकले हुए, वो जोश में निकले हुए थे, हम मारेंगे मुसलमानों को। उन्हें पता था मुसलमानों के पास दुनियावी लिहाज से उनकी हैसियत कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये इस आयत में आगे आगे बयान भी हो रहा है, ज्यादा अच्छी नहीं थी। तो अल्लाह पाक ने खुसूसी मदद से, उसका जिक्र आगे आ रहा है इसलिए उस मदद को हम नहीं छेड़ते। अल्लाह पाक ने कैसी फतह दी कि इन 313, टोटल 313 मुसलमान थे, 313 जिनके पास 2 घोड़े थे, टोटल 70 ऊंट थे, 8 तलवारें थी शायद, ये साजो सामान था। और मुकाबले में वो पूरे साजो सामान, आप उसको कहें उस वक्त की सुपर पावर थी, पूरे साजो सामान घोड़े ऊंटों के साथ और रिसालों के साथ, तलवारों के साथ, तीर और तफंग के साथ, अपने जंगजू बहादुरों के साथ तैयारी करके आए हुए थे। ये तो तैयारी की हालत इनकी ये थी कि ये तो निकले थे कि हम काफिले को लेंगे, 70 ऊंट लेके निकले थे, सिर्फ 2 घोड़े निकले। ये मकसद तो जंग का था नहीं। जंग पेश आ गई, जंग जब पेश आ गई तो फिर नबी तो पीछे नहीं हटता ना। अनन नबी ला कज़िब, अनन नबी, क्या कहते हैं वो ग़ज़वा हुनैन ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक, कहेंगे हुज़ूर का शेर है या क्या है, लेकिन ये मुकफ़ा उनका मुसज्जल कलाम है, अनन अनबन अब्दुल मुत्तलिब। तो अब इसमें भी आगे जिक्र करते हैं कि जब नबी ने ज़रा पहन ली तो इन्होंने कहा था कि खैर वापस हो जाए, हम मदीना में ही लड़ाई कर लेंगे। नबी ने कहा जब नबी ज़रा पहन लेता है तो फिर वापस नहीं होता, जब फिर अल्लाह पाक ही उसको हुक्म दे तो फिर वापस नहीं होता, जब तक वो शहीद ना हो जाए, जंग ना लड़ रही, अल्लाह का हुक्म ना आ जाए। एक दफा तैयार हो गया ना तो फैजा आजम तफतवक्कल अल्लाह, जब आजम कर ले नबी तो फिर अल्लाह पे तवक्कल होता है, जो भी हालात पेश आए उसके लिए। तो वो 70 काफिर मारे इन 2 तलवारों से, और कुछ और क्या होगा उनका। 70 काफिर मारे अल्लाह पाक की मदद से, 70 गिरफ्तार भी किए और बाकी बाकी, और मारे गनीमत भी कुछ हाथ आया मुसलमानों के। तो बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त हुई मुशरिकीन मक्का को, ऐसी जिल्लत वाली शिकस्त के दुनिया हैरान होगी कि इन लोगों ने क्या कर दिया, कि वो अल्लाह पाक और मुसलमानों की धाक ऐसी बैठी ग़ज़वा बदर के बाद कि ये कमाल की कौम है, क्या कमाल कर दिया कि इतने बड़े लश्कर को बेसरो सामानी के बावजूद भी इतनी बड़ी फतह तो था। लेकिन मुशरिकीन तो तपे हुए थे ना, वो तो वापस गए तो 70 काफिर मरवा के गए थे। बड़े बड़े सरदार जो मक्का के थे वो सारे मारे गए, बड़े बड़े अबू जाल और पता नहीं उतबा और उमैया बिन खल्फ और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े सरदार मारे गए। और इसलिए वो सरदारी फिर अबू सुफियान के थे ऐसे में। उसके बाद जो मक्का का सरदार था मुशरिकीन का अबू सुफियान, बाद के सारे जो जंगें या गज़वात थे वो अबू सुफियान ने लीड किया जब तक वो मुसलमान नहीं हुए। तो ये बहुत बड़ी शिकस्त थी। उस शिकस्त का बदला लेने के लिए वो जो काफिले का जितना भी माल था ना काफिरों का, वो सारा माल उन्होंने तय कर लिया था कि हम इसको जंग की तैयारी में लगाएंगे और हम मदीना के मुसलमानों से बदला लेंगे। और उस बदला लेने के लिए वो उन्होंने 3000 का लश्कर लेकर तैयार करके आए थे, 3000 का। और 3000 का लश्कर पूरे रिसाले के साथ, घोड़ों के साथ, तलवारों तफंग जो भी उनके पॉसिबल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी पता था कि ये बदला लेने आएंगे। अरब माशरे की ये हुजूर को पता तो था कि कबायली उनको क्या है कि वो तो उनको चैन नहीं आता जब तक बदला नहीं ले। अरबों में आती वो दुश्मनियां चलती थी, उन्हें पता था कि वो आएंगे। और शायद बाद रवायात तारीख में ऐसी भी मिलती हैं कि ये तय हुआ था कि अगले साल हम आएंगे दोबारा, ये तय भी हुआ था हम आएंगे।
तो वो ग़ज़वा बदर तो 17 रमज़ान को हुआ है, मशहूर डेट है उसकी, 17 रमज़ान को हुआ था। तो ये अब शवाल है, ये 3 हिजरी का शवाल है, 1 साल गुजर गया, 1 साल 1 महीना गुजर, वो आ गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया अपने साथियों से कि अब वो आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है। अब 2 सूरतें, या तो हम बाहर निकल कर उनसे लड़ें, या ये है कि हम मदीने में रह कर दिफा करें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना ज़ाती ख्याल मदीना में रह कर दिफा करना था। और अब्दुल्ला बिन उबई, जो वो सरदार था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, वो एक बड़ा आदमी था, अब बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था मुखालिफ, उसको भी हुज़ूर ने मशवरे में शामिल किया। उसका भी मशवरा यही था कि मदीने के अंदर रह कर हम करें। लेकिन कुछ मुसलमान जज्बे वाले, क्योंकि 1 साल पहले मुसलमानों ने अपने जौहर दिखाए थे ना बदर में, वो जज्बा भी उनमें मौजूद था। और बहुत से नौजवान मुसलमान जो नए मुसलमान भी हुए थे 1 साल के अंदर, और कुछ ऐसे भी लोग थे जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे। ये लोग जो थे ये चाहते हुजूर हम बाहर निकल कर उनके साथ मुकाबला करेंगे। तो बहुत से लोगों की ये राय थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये राय सुनकर घर के अंदर तशरीफ ले गए, और जैसे मैंने कहा वो ज़ेरा पहन कर तैयार होकर आ गए। हालांकि हुजूर की अपनी राय उसमें, जब वो ज़ेरा पहन कर तैयार होकर आ गए ना सामने, तो जो बाकी मुसलमान जिनके मशवरे पे हुजूर बाहर निकलने का फैसला हुआ था, या तो उन्हें ज़रा शर्मिंदगी हुई कि हमने हुजूर की मर्जी के बगैर के खिलाफ हमने इनको तैयार कर दिया। उस वक्त उनको कहा भी कि हुजूर आप अगर आपका हमने हमारे कहने पे आप यूं तैयार हो गए, आप खैर है, हम आपकी मर्जी के मुताबिक इधर ही। तो इस वक्त नबी ने कहा कि जब नबी तैयार हो जाए ना, फिर पीछे नहीं हटता, फिर अब हम जाएंगे। तो ये वो वक्त है कि ये जब निकले हैं, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बबीउल-मोमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल, मुसलमानों को जंग की मुख्तलिफ पोजीशनों पर मुतय्यन फरमा रहे थे। तर्जमा हमने कर दिया है, अब उसका मफहूम यह है कि जंग के लिए मुतय्यन फरमा रहे थे, और वो मुतय्यन फरमाना बहुत ही बातें हमें पता है। ये जो वहाँ गए हुए हैं, ओहद का पहाड़ देखा हुआ है, और वो रमात वाली पहाड़ी देखी हुई है, जिस पे उन्होंने, आप देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ओहद, ये ओहद है, और ये जो मुशरिकीन मक्का है यहाँ बैठे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बच के ओहद के दामन में पहुंचे हैं, यानी मदीना और ओहद के दरमियान में हुजूर के लश्कर के और मदीना के दरमियान में काफिरों का लश्कर खैमादन था या मुतय्यन था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्रॉस करके इधर गए हैं, अपने ओहद पहाड़ के दामन में उन्होंने मदीना की तरफ मुंह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई है। यानी इनके सामने काफिर थे और उसके पीछे मदीना था। ये उनकी हिकमत अमली थी, पहाड़ को अपने बैक पे रखा कि बैक तो हमारी महफूज हो जाए। और फिर उनको एक महफूज थी, अगर वो नक्शा जो वहाँ गए हुए उनको याद है, वो रमात की पहाड़ी तो अब टीला ही रह गया, वो कुछ नहीं बचा। लेकिन उसको हुजूर को ये ख्याल था कि अगर इधर जंग का मैदान होगा तो इस पहाड़ के पीछे से कोई घूम कर हम पे इधर से हमला ना करे, हम तो उधर लड़ाई कर रहे हैं, उधर हमला करने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी पर, टीला था बहुत बड़ी पहाड़ी नहीं, उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किए 50 तीर अंदाज जो मुतय्यन किए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु, शायद खजरज के थे वो, उनको मुतय्यन किया और उनको सख्त हदायत दी कि कुछ भी हो जाए आपने इस जगह से नहीं छोड़ना और इधर से किसी को आने नहीं देना। वो मुतय्यन थे उधर से आने का, जो एक आने का चांस था, वो चांस उन्होंने रोका हुआ था। वो तीर बरसाते थे, उनको पता था कि इधर से तीर आएंगे, वो तंग दरा था, वहां से गुजरना मुश्किल था। तो वो वहां बैठ के उनको ये कहा था कि आप चाहे हमें हमारे बोटियां परिंदे नोच लें, आपने उतरना नहीं। इतनी सख्त ताकीद की थी ये वहां। तो ये फौजी हिकमत अमली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे से बस हालात थे। ये मुशरिकीन मक्का बदर में अल्लाह की मदद से हुआ, लेकिन एक वजह उनकी ये भी थी, वो तो बस आके लड़ाई करते थे, मारते थे, कोई
तय शुदा प्रोग्राम के मुताबिक वो लड़ते नहीं थे। ये उन्होंने फिर हुजूर से सीखा, मक्का उसमें बदर में भी, और फिर यहाँ पे जो आके उनको देखा कि ये तो बड़े तरीके से कि मैसरा और मेमना और रिसाला का सरदार यूं करें, सारी स्ट्रेटजी बना के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करते थे। ये किसी उसने लाइफ ऑफ मोहम्मद किसी के उसकी मुस्तशर की किताब है, उसने कहा कि हुजूर उन्होंने तो कमाल तरीके से स्ट्रेटजी बनाई थी। तो ये वो है कि तो बव्विउल मोमिनीन मकाइद लिल किताल, तुम मोमिनों को सेट कर रहे थे उन जगहों पर, जंग के लिए तैयारी कर रहे थे। और वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सुन भी रहा था, खूब सुनता है और जान भी रहा था। क्या सुन रहा था? आपस में जो ये मशवरे हो रहे हैं, ये पहले भी जिक्र किया, ये अल्लाह सुन रहा है, काफिरों को भी सुन रहा होगा। और जो कुछ होना है वो अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह के इल्म में तो सारी बातें मौजूद है ना, कि अब इस लश्कर के साथ इस जंग का एंड रिजल्ट क्या होना है, बल्कि अल्लाह अलीम है और उन काफिरों के मुतल्लिक भी अल्लाह को सब कुछ इल्म था। तो ये अल्लाह कह रहा है वल्लाहु समी, अल्लाह सुन भी रहा था और खूब जानता भी था कि क्या होने वाला है और क्या लोग तुम सोच क्या रहे हो, क्या बोल क्या रहे हो। तो इसमें एक आम नुक्ता हम सबको पता है कि अब्दुल्ला बिन उबई के मशवरे के अगेंस्ट क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले थे, तो वो निकला तो था ओरिजिनल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 लोगों को लेकर निकले थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई जो है, शौत शायद उस जगह का नाम कहते हैं, ये शात कहते हैं, उस मकाम पे 300 लोगों को लेकर वापस हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा मशवरा नहीं गया तो खाम खा इसके वो वापस हो गया। कुछ किताबों में ऐसा भी है कि वो ओहद से वापस हुआ है, कुछ कहते हैं नहीं रस्ते से वापस हो गया। बहरहाल उसके वापस होना प्लान था, उसने तय किया हुआ था कि जब ऑलरेडी वो 3000 के मुकाबले में ये 1000 निकल रहे हैं, ठीक है, कुछ तैयारी करके निकले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की है, इसके लिए चंदे की अपील की है, सहाबा ने पैसे दिए हैं, अपने असला जमा किया है, कुछ तलवारें की हैं, बदर वाली सूरत हाल नहीं थी, तैयारी करके निकले हैं। लेकिन फिर भी क्या उनकी टोटल कितने 1000 लोग जमा हुए, और उनमें से भी 300 जब वापस हो जाएं तो 3000 के मुकाबले में 700 रह गए, 4 गुना ज्यादा लोग, 4 गुना से भी ज्यादा लोग वो मौजूद है। तो अब्दुल्ला बिन उबई का मकसद ये था कि जब मैं निकलूंगा तो इन लोगों के दिल टूटेंगे, टूटे ना, आगे अल्लाह पाक बयान कर रहे हैं ना। तो वो तो निकल गया, अल्लाह पाक ने उसको लिफ्ट ही नहीं कराई, उसके छोड़ जाने को। इस रुकू में एक और जगह पे थोड़ा सा जिक्र किया है इस बात को कि बहुत बड़ी तादाद वो लेकर निकल गया ना, इस बात का अल्लाह ने मेंशन ही नहीं किया। यहाँ पे वक्त का भी मेंशन कर रहा है और घर में से निकलना भी मेंशन कर रहा है अल्लाह पाक, लेकिन उसकी इतने बड़े काम को कि 300 लोगों को वो यानी 1/3 फौज तो भाग गई, पहले जंग से पहले ही भाग गई। अल्लाह ने लिफ्ट ही नहीं कराई, इस बात को जिक्र ही नहीं किया। आगे जिक्र क्या कर रहा है अल्लाह पाक, इज हमत इज लगा हुआ है, फिर इज याद करो ये वक्त को, हमत ताइफतान मिनकुम अन तफशला वल्लाहु वलियुहुमा। हम्मा 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 का मतलब होता है, हम गम को भी कहते हैं, हम गम उर्दू में कहते हैं, ये वही लफ्ज है। इसका ये माना भी होता है कि इरादा कसद कर ले। सूरह यूसुफ में है ना, जब जुलेखा ने उनको दावत दी तो वहां पे क्या लफ्ज है, वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अर्रा बुरान रब्बे, कि उस औरत ने उसका इरादा कर लिया था यूसुफ अलैहिस्सलाम का, व हम्मा बिही लौला अर्रा बुरान रब्बे, और अगर बुरहान रब्बे उनके साथ ना होती तो वो भी इरादा करते, जो भी है। तो हम्मा का मतलब होता है इरादा करना, ये हम्मत मुअन्नस, उस फीमेल ने इरादा कर लिया। वलकद हम्मत, इस हम्मत जब इरादा कर लिया, कसद कर लिया, किसने, ताइफतान मिनकुम, ताइफा एक ग्रुप, एक ग्रोह, ताइफतान दो ताइफे, उसका तस्निया है, मिनकुम तुम में से 2 ग्रोह ने जब इरादा कर लिया, किस चीज का कसद कर लिया, अंतफशला, फाशिला यफशलु, सामिया यस्माओ के वजन पर है। फाशिला यफशलु का मतलब है कि नामर्दी दिखाना, बुजदिली दिखाना, ऐसे ही है। फाशिला यफशलु बुजदिली दिखाना, इन्होंने भी दिल में बुजदिली या नामर्दी या कोई खौफ आ गया था,
اور اللہ آگے کہہ رہا ہے لا بھی لکھا ہوا ان تفشلا، ان دونوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ کچھ نرمی یا بزدلی دکھانے کا، واللہ ولیہما، اللہ تو ان کا دوست تھا ان دونوں کا، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں گروہ کا دوست تھا، یعنی وہ پکے سچے مسلمان تھے، وہ سچے، وہ 300 جو عبداللہ بن ابی لے کے گیا تھا وہ تو زیادہ تر منافق تھے نا، شاید کوئی ایک آدھ مسلمان میں ایسا کمزور والا چلا گیا، وہ زیادہ تر تو منافق تھے۔ ان کے متعلق کہتا ہے کہ ان کے دل میں بھی ذرا کمزوری آئی تھی، اللہ ان کا دوست تھا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تھے اور پھر انہوں نے کمزوری دکھائی نہیں ہے، اس نے قابو پا لیا۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست تھا، اللہ ان کے ساتھ تھا، اللہ ان کے مددگار تھا، ولی مددگار کو کہتے ہیں۔ ان کے دل میں کمزوری آئی لیکن چونکہ وہ اللہ ان کا مددگار تھا، وہ کمزوری ان کی ظاہر نہیں ہوئی، وہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ یہ دو قبیلے تھے، بنو سلمان، بنو حارثہ ان کا نام تھے، ایک اوس سے تھا، ایک خزرج سے تھا۔ آپ کو پتہ ہے بڑے قبیلے تو اوس و خزرج تھے نا، ان میں پھر آگے گرانے تھے نا، ایک بنو سلمہ ایک بنو حارثہ، چھوٹے گروپ تھے ان میں۔ بنو حارثہ جو تھے یہ اوس سے تھے، اور دوسرا کون سا بنو سلمہ جو تھے خزرج سے۔ ان دونوں کے دلوں میں ذرا، لیکن یہ گئے نہیں ہیں۔ اللہ پاک آگے فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، پس کہے یہ یتوکل المؤمنون، لام مضارع کے ساتھ جب لام لگتا ہے اس کو لام امر کہتے ہیں نا، حکم جس کو کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اگر سامنے والے کے ساتھ لگے تو فعل امر بناتے ہیں کہ تو یہ کر یا تم سب یہ کرو، لیکن باقی صیغوں کے ساتھ لام جب لگتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ ہو، ایسے ہم ترجمہ کرتے ہیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں وعلی اللہ، اللہ پر۔ مومن ہے ولی و ماں، تم وہ یہ دونوں گروپ مومن ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ اللہ کے پہ توکل رکھیں، اللہ ان کا دوست ہے، ان کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ پر توکل رکھیں۔ اور توکل کی بھی ذرا سی بات تشریح، توکل یہ نہیں ہوتا کہ بس جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، آپ سارے اسباب اختیار کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال جنگ کی تیاری کرتے رہے، پورا سال جنگ کی تیاری کیا ہے، زرہ پہن کر نکلے ہیں، 2 زریں پہن کر نکلے ہیں، ایسا بھی ہے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں 2 زریں پہنی ہیں، زریں پہن کر نکلنے ہیں، وہاں سے اسٹریٹجی بنائی ہے، آپ یہاں پہ متعین کیے ہیں، یہ سارے اسباب اختیار کیے ہیں، یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد مومن کی نظر جو ہوگی وہ اللہ پر ہوگی، اسباب پر نظر نہیں ہوگی۔ اسباب پر نظر جو ہے وہ منع ہے، توکل کے خلاف ہے۔ توکل یہی ہے کہ آپ سارے اسباب اختیار کریں گے لیکن ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، ہمارے دل میں یہ ہوگا۔ اس کے لیے قرآن پاک میں مثالیں ہیں نا، وہ اللہ پاک آگے اگلی آیت میں مثال دے رہا ہے نا، اللہ نے مثال دے تو اسباب پہ یہ ان کے دل میں ذرا سی یہ دو گروپ جو ہیں ذرا سی کمزوری کیوں آئی تھی، وہ 300 لوگ جاننے سے کہہ رہا 300 لوگ ہیں، اب تو بہت ہی تھوڑے، اتنی سی بات ان کے ذہن میں آئی ہوگی، ایمان ان کا متزلزل نہیں ہوا، یہ دنیاوی لحاظ سے اسباب پہ تھوڑی سی نظر گئی ہے۔ اسباب پہ نظر جانا تو اللہ کو اتنا لفظ میں بول دوں ناپسند ہے، ناپسند ہے لفظ بول دیں۔ وہ حنین کے لیے قرآن پاک میں آ گیا ہے نا، حنین میں 12,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، فتح مکہ کے بعد ہے نا، 10,000 تو فتح مکہ والے ہیں، 12,000 کا لشکر تھا، شاید اس سے بھی زیادہ تھا، اور مقابلے میں وہ جو سقفی قبیلے والے جو جن کے ساتھ حنین کی جنگ ہوئی ہے 3,000 تھے۔ وہ جب 3,000 اور جب یہ 3,000 کے لیے یہ 12,000 کا لشکر گیا نا، تو نئے نئے مسلمان ہونے والے کوئی ایسی باتیں نہ شامل، انہوں نے کہا آج تو ہم 12,000 ہے، یہ 3,000 کو تو ہم پھونک مار کے اڑا دیں گے، ایسے بڑے یہ غرور آ گیا تھا نا، قرآن پاک میں مینشن کیا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذَا جَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہارے دل میں یہ غرور آ گیا تھا نا کثرت کا، تو اللہ پاک نے ایسا کیا کہ سارے 12,000 کے 12,000 بھاگ گئے۔ کہتے ہیں کہ 100 لوگ بھی نہیں رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسے بھاگے۔ حضور تو نہیں بھاگتے نا، یا بڑے لوگ، سارے لوگ بھاگے، وہ جو پہاڑوں پہ بیٹھ انہوں نے تیر برسانے شروع کیے، یہ سارے بھاگ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے یا چند لوگ رہ گئے، پھر حضور نے آوازیں دی، صحابہ نے آوازیں دی، پھر جمع ہوا، اللہ پاک نے مدد کی، لیکن اللہ پاک نے بتا دیا کہ اسباب پہ تمہاری نظر جائے گی نا تو پھر خیر نہیں ہے تمہاری۔ تو یہاں پہ بھی تو اسباب پہ تمہاری نظر جا رہی ہے، اللہ پہ توکل کرو۔ اور اللہ پاک پھر آ کے مثال دے رہا ہے، ایک یہ 2 آیتوں کے بعد اللہ پاک نے مثال دی ہے، اور 1 سال پیچھے اللہ پاک لے کے گیا ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تمہیں یاد نہیں ہے؟ وَلَقَدْ
बेशक तहकीक यकीनन, दो दफा कद भी है, लाम भी लगा हुआ है, दोनों लगा हुआ है। नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की थी, बेबदरिन, बदर के मैदान में, व अंतुम अजिल्ला, अल्लाह पाक उनके व अंतुम अजिल्ला, अजिल्ला का तर्जमा, अजिल्ला जलील की जमा है, जलील का जो तर्जमा उर्दू में हम करते हैं ये वो अजिल्ला नहीं है। अजिल्ला का मतलब होता है, जलील तो हम उर्दू में उसको कहते हैं ना जो अर्थ, हम जिल्लत जिसको हम उर्दू में कहते हैं जिल्लत, इस जलील का मतलब होता है बहुत पस्त हालत, कमजोर। वान तुम अजिल्ला, तुम तो बहुत ही कमजोर हालत में थे उस वक्त। कमजोर हालत अभी हमने बयान किया, 2 तलवारें और 8 घोड़े और बस, ये टोटल उनका असला है, उनके लिए जा रहे हैं। और अल्लाह पाक ने कैसी फतह दी, तो ये तुम्हें अल्लाह पाक याद दिला रहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो जब तुम ईमान, और पहले मैंने वो दो आयत, ईमान और तकवा था, वो जो पिछली आयत में है कि अगर तुम्हारे तकवा और सबर वाले होगे तो फिर तुम्हें कभी कोई शिकस्त नहीं दे। ग़ज़वा उहद में सबर की कमी हुई थी, वो आगे मेंशन होगा ना, जब वो ये रमात वाले जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथियों ने जब वो छोड़ा था, सबर की कमी हुई थी ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बैठे रहो, तो उनसे कहा कि ये जंग खत्म हो गई है तो हम इसमें शामिल हो जाएं, इसमें माल गनीमत लेने में, या बस जंग खत्म हो गई। सबर की कमी हुई तो अल्लाह पाक की मदद वापस हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में शिकस्त हो गई। तो वान तुम अदिल्ला, तो तुम्हें याद नहीं है कि हमने कैसी मदद की थी तुम्हारी बेसरो सामानी की हालत में। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। फिर तकवे का अल्लाह पाक कह रहे हैं ना, ये तकवे को, तकवे के उस लेवल को मत छोड़ो। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। इसका मफहूम क्या है, इसका मतलब क्या है कि तुम तकवा इख्तियार करो ताकि तुम शुक्र कर सको। तशकुरून, तुम शुक्र करते हो, लअल्लकुम, ताकि तुम शुक्र कर। इसका मतलब है फत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। तो अल्लाह कहते हैं ना, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह मअल मुत्तकीन, मुत्तकीन के साथ होता है। अगर तुम तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कुरान पाक के मुख्तलिफ, तो फत्तकुल्लाह, तुम जब अल्लाह से डरने वाले होगे तो फिर तो अल्लाह तुम्हारे साथ है, सारी मददें तुम्हारे साथ होगी। लअल्लकुम तशकुरून, फिर तुम शुक्र ही शुक्र के सूरत में हो जाओगे। इसलिए यह कहा कि तकवा इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हें उस लेवल तक ले जाएगा कि तुम शुक्र करने वाले हो जाओगे, तकवा इख्तियार करोगे। अब ये बदर का जिक्र आया, इसमें जरा सा एहतियात के साथ तर्जमा क्या करें, 2 राय हैं इस बारे में। जो मजबूत राय है वो पहले हम बयान कर देते हैं कि अब ये पीछे, बल्कि कमजोर राय पहले बयान करते हैं कि आगे अगली आयत क्या आ रही है। इस्तक़ूलो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब है। इस्तक़ूलो, जब तू कह रहा था, लिल मोमिनीना, मोमिनों को, अलन यकफियकुम, कफा यकफी हमने पढ़ा हुआ, काफी हो जाना, पूरा हो जाना, तुम्हारे लिए बहुत हो जाना। अलन यकफियकुम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है। अन युमिद्दकुम, अमद्दा युमिद्दु, मदद करना, हमने पढ़ा हुआ है। अमद्दा युमिद्दु, अन युमिद्दकुम रब्बुकुम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइका, कि फरिश्तों के 3000 फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद करे। मुनजलीन, उतरने वाले, अंजला युनजिल, उतारना, अंजला उसने उतारा, मुनजिल उतारने वाला, मुनजल जो उतारा जाए, मुनजलीन जो फरिश्ते उतारे गए होंगे। तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करो जब तुम कह रहे थे मोमिनीन से कि तुम्हारे लिए क्या ये काफी नहीं है कि तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से तुम्हारी 3000 फरिश्ते मुनजल करके तुम्हें तुम्हारी मदद करे, क्या ये काफी नहीं है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे थे। इसके मुतालिक 2 बातें हैं। ये ग़ज़वा उहद में फरमा रहे थे, ऐसे भी हो सकता है ग़ज़वा उहद में फरमा रहे थे, लेकिन ज़्यादा मजबूत दलील ये है, बदर की पिछली वाली आयत आ रही है, ये वहाँ पे फरमा रहे हैं। जब वहाँ पे जंग उसके लिए निकले थे, काफिले को लेने के लिए निकले थे, तो मुकाबला आ गया लश्कर से। तो मोमिनों में जो थोड़ी सी वो एक बात कही, ये क्या सूरत हाल बनेगी। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि
تمہیں کافی نہیں اللہ 3000 فرشتے بھیج دے. بلکہ سورہ انفال میں پہلے تو 1000 فرشتے کا ذکر ہے. سورہ انفال میں استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو وہاں پہ بیالف من الملائکۃ مردفین ہے وہاں پہ لفظ کہ قطار در قطار 1000 فرشتے، کیونکہ 1000 کا لشکر تھا مسلمانوں کے مقابلے میں. پہلے 1000 کا ذکر آیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مور تقویت دینے کے لیے یہ 3000 کا لشکر فرمایا. پھر اللہ پاک کہتے ہیں بلا، یہ کیا پہلے سوال ہے نا، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ پاک تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ساتھ مدد دے، اللہ ان کو نازل کرے؟ بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں. ان تصبروا، پھر اللہ پاک وہی بات کر رہے ہیں. یہ وہ میں نے کہا نا پچھلی آیت کو یاد رکھ، ان تصبروا، اگر تم صبر والے ہوگے نا، وتتقوا، اور تقوی کے اس معیار والے ہوگے جو پہلے پڑھ کے آئے، 2 رکوع پہلے پڑھ کے آئے. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، وَيَأْتُوكُم یہ پڑھا ہوا ہے نا، عطایاتی آ جانا، وَيَأْتُوكُم وہ سارے آ جائیں تمہارے پاس، من فورہم اچانک، فوراً، یہ وہی لفظ ہے، سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ آ جائیں. ایسے ہی ہوا تھا بدر میں، ایسے ہی ہوا تھا. وہ نکلے تھے اس قافلے کے لیے اور یہ لشکر ان کے اوپر چڑھنے کا چاند. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرٍ، فوراً تمہارے پاس آ بھی تمہارے اوپر اچانک حملہ بھی کر دیں. ہاذا یہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ پاک 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا، مسومین، نشان زدہ. یہ پڑھا تھا ہم نے وہ اس آیت میں کہ وہ تمہیں کیا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الخیل والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے وہاں پہ ترجمہ کیا تھا، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مسومہ وہاں پہ. تو مسومین، یہ فرشتے کیسے اتریں گے؟ جو ان کی وردی ہوگی، ان کا نشان لگا ہوگا کہ یہ اسی کام کے لیے آئے ہیں. 5000 فرشتے. اس کو پھر دوبارہ ترجمہ، بلا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم کرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ اچانک تم پہ حملہ کرنے کے لیے وہ آ بھی جائیں. ہذا یمددکم ربکم، اللہ مدد کرے گا تمہاری، وہی لفظ ہے یمددکم ربکم، تو بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، نشان والے متعین شدہ، جن کو بیج دے دیے گئے. نشان یہی ہو گیا نا، ان کو بیج لگا دیے گئے کہ یہ اس کام کے لیے لگائے، نشان زدہ. تو اس کو کر، تو یہ جنگ زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ جنگ بدر کا واقعہ ہے، کیونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے سورہ انفال میں، اس آیت کو تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ سورہ انفال میں غزوہ بدر میں یہ آیت اللہ پاک وہاں پہ آئی ہے. اس لیے یہ بھی منظر کشی ہو رہے ہیں کہ فرشتے آئیں گے، یہ کر رہے ہیں کہ غزوہ بدر کے متعلق ہے، کیونکہ آگے ہے وما جعلہ اللہ، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اس نے، اللہ اس کو، اللہ نے، ہو کیا، اس مدد کو، اللہ نے اس مدد کو اس لیے نہیں بنایا الا سوائے اس کے بشرا لکم، یہ تمہاری خوشخبری کے لیے تھا، تمہیں خوش کرنے کے لیے. یہ 3000 فرشتے، 1000 پہلے، 1000 اور 3000 5000. کیا فرشتوں نے جنگ کی تھی وہاں پہ؟ 5000 فرشتوں کی ضرورت کیا تھی؟ مثال کے طور میں لوط علیہ السلام کی قوم کو الٹنے کے لیے ایک فرشتے نے وہ پر کو زمین پہ دیا اور الٹ کے رکھ دیا، ایک فرشتہ. اور فرشتے کی اتنے ہزاروں فرشتوں کی جنگ کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجے تھے. وہ سورہ بدر میں، سورہ انفال میں ذکر کیا، یوحی ربک الی الملائکۃ ثبتوا الذین آمنوا. فرشتوں کو اللہ پاک نے کیا کہا تھا کہ تم ایمان والے کے دلوں کو مضبوط کرو گے. وہ لڑنے کے لیے نہیں بھیجے تھے، وہ ان کو لڑنا مسلمانوں نے خود ہے. اس لیے تو اتنے بڑے درجے ہیں نا شہادت کے اور اس کے جنگ کے. صرف ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، دل والا ہو تو پھر دل جب ٹھیک ہو تو پھر بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں نا. تو وہاں پہ بھی ہے یہ فرشتے، اللہ پاک نے اس مدد کو اللہ نے خوشخبری کے طور پر کیا. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم. یہ لام یہ ہے نا، لتطمئن، لام دیر، اس کو لام تعلیل کہتے ہیں، کے لیے، اس لیے کہ ولتطمئن، تاکہ اطمینان ملے، قلوبکم بہ، اس کے ساتھ تمہارے دلوں کو. اچھا ایک ذرا سی ایک بات اس میں، یہ بھی گرامر والی، یہ تطمئن کا جو روٹ لیٹرز ہے نا، وہ طا میم نون ہے. اس کو بہت کم استعمال ہونے والا باب ہے، باب افعیلال.
इत्मीनान लफ्ज़ इसी से ने इफ़इलाल को वो पिछली दफ़ा भी अब यद्दत और वो इफ़इलाल था, वो भी कम इस्तेमाल हुआ है। ये इफ़इलाल भी बहुत कम इस्तेमाल हुआ है ये ग्रामर में, ग्रामर का वो वलबा तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। वाले तत्मइन्ना, चूंकि हमें पता है कि इत्मीनान को हम उर्दू में इस्तेमाल के वाले तत्मइन्ना कुलूबुकुम, ताकि तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिले। ये जो मदद का वादा, फरिश्तों के आने का वादा अल्लाह पाक आवाज लगा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ये जो आ रही है। और बल्कि कुछ ऐसे वाकयात भी हैं कि बदर में या कुछ आवाज़ें सुनी हमारे कुछ साहबा ने, और ऐसे भी कहते हैं कि एक आदमी की तरफ तलवार उठाई तो वो जरा सा मारा तो वो मर गया, और बाद लोग बात कहते हैं कि जिब्रील की आवाज़ आई, कुछ तस्बीह की आवाज़ें आई। तो ये सारी बातें जो हो रही थी लितत्माइन्ना कुलूब, ये उनके दिलों को मजबूत करने के लिए। हमारे साथ इतने लोग फरिश्ते मौजूद हैं, हमें डरने की क्या ज़रूरत है। जब ये इसलिए था, वह आगे अल्लाह पाक वो फाइनल वर्डिक्ट जो अल्लाह पाक की है, ये फरिश्ते इनकी क्या ज़रूरत है अल्लाह को। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, फरिश्ते मदद करेंगे। अल्लाह को क्या जरूरत है फरिश्तों की, ये तो मोमिनों के इत्मीनान के लिए या उसको खुश करने के लिए अल्लाह पाक ने फरिश्तों का क्या दिया। अल्लाह को क्या जरूरत है, अल्लाह के सामने तो सब कुछ कौन फयकून वाली बात होती है। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद तो बस अल्लाह की तरफ से होती है, ये फरिश्तों की तरफ से नहीं होती, अल्लाह की तरफ। अल्लाह ने जो करना होता है वो कर देते। ये बातें फरिश्तों को भेजने वाली बातें, बुशरा लकुम वाले तत्मइन्ना कुलूबुकुम, ये इसलिए अल्लाह पाक ने मैं दिया। मदद तो अल्लाह है, अल अजीज अल हकीम, जो गालिब भी है और हकीम भी है, के खूब हिकमत वाला है। ये अल्लाह की हिकमत की बातें है ना, कि मुसलमान मदद अल्लाह पाक ने करनी है, अल्लाह पाक ने तय करना है कि किसी के साथ क्या होना है, वो उसकी मर्जी के मुताबिक होता चला जाएगा। ये फरिश्तों को करने, मोमिनों को मुतमईन करने के लिए, खुश करने के लिए अल्लाह पाक ये हिकमत की बातें कर रहे हैं। और ये मदद अल्लाह पाक है, ये इतनी बड़ी मदद तुम्हें मजबूत करने की अगली आयत में है। इसकी इल्लत क्या है आगे, लियकता, ये इल्लत का लफ्ज इसलिए बोला कि फिर लाम तालील आ गया। लियकता तरफम मिन अल्लज़ीना कफरू, लियकता, ताके काट दे, तरफन एक ग्रोह, एक हिस्सा, मिन अल्लज़ीना कफरू, तरफन एक हिस्सा, किसी चीज का हिस्सा, तरफम मिन अल्लज़ीना कफरू, काफरों के ग्रोह में से एक हिस्सा काट के रख दे। ये मदद ये मुसलमानों ने काट के रख दिया। तो बदर में कैसा काट के रखा, 70 मार दिए, उन इतने बेसरो सामानी में काट के रख दिया। आओ यक बिताहुम, मेरे ख्याल में ये भी काबिता यक बितो है या काबाता यक बितो, आई डोंट नो। इसका मतलब है काबाता, कबतुन का मतलब होता है नीचे गिरा देना, नीचे गिरा देना, इसका लफ्जी माना नीचे गिरा देना, जलील करना, रुसवा करना। आओ यक बिताहुम, या उनको जलील कर दे, उनको रुसवा कर दे। तो रुसवा किया ना, वैसे तो टोटली रुसवाई थी मुशरिकीन मक्का की, लेकिन 70 गिरफ्तार जो होके आ गए थे, इन बेसर सामान लोगों ने उनको गिरफ्तार किया। कितने, 70 लोगों को। भागना तो अलग बात है ना, वो तो भाग गए, ये गिरफ्तार कैसे हो गए, है ना। ये इतनी जलालत, इतनी तजलील तो शायद किसी की ना हुई हो कभी, कि ये नहत्ते लोगों ने उन 70 को 70 मारने के बाद 70 गिरफ्तार भी किए, माल गनीमत भी लूट है। और फयन कलेबू, इन कलबयन कलेबू से है लौट जाना, फयन कलेबू वो लौट जाए, खाइबीन, खाबा नाकाम होना, खराब हो जाना, खराब हो जाना, खाइब जो खराब हो जाए, जो नाकाम हो जाए, खाइबीन नाकाम, फयन कलिबू खाइबीन, बाकी सारे भाग गए। ये तीनों बातें इस आयत में आ गई हैं कि एक तो ये है कि लियक्ता तरफ मिन अल्लज़ीना कफरू, एक ग्रुप को तो बिल्कुल काट के रख दिया, और एक ग्रुप को यकबितहुम, उनको जलील करके, सारी कौम वो जलील भी होगी, लेकिन स्पेशली गिरफ्तार होने वाले तो खुसूसी तौर पर जलील हो गए। फयन कलिबू खाइबीन, बाकी तो नाकाम और नामराद होके वहां से भाग गए। तो ये सारी आयतें बदर की अल्लाह पाक ने याद दिलाई हैं।
یہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ احد کے متعلق بھی ہیں، اس وقت بھی شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فرشتوں کے نزول کا، تو لیکن یہ چونکہ یہ آیت جو یہ جو اسپیشلی یہ جو آیت ہے نا بشرا وما جعل اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ قلوبکم، شاید تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہاں پہ آئی ہے، ایگزیکٹلی غزوہ بدر کے متعلق آئی ہے، تو اس لیے یہ شاید آیتیں ہیں۔ اگلی آیت پڑھنے سے پہلے ہمیں غزوہ بدر کا وہ منظرنامہ تھوڑا تھوڑا ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 50 لوگ ادھر مقرر کر دیے تھے، اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو یہ جو 700 ہیں جن کو اللہ کی توکل حاصل ہے پیچھے ذکر کیا، اور شاید ان کو بھی یہ بھی یقین ہے کہ ہمارے ساتھ فرشتے ہیں، ہمارے ساتھ رسول موجود ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہے نا، ہمت ہوتی ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں کیا ہو سکتا ہے، ایسے ہی ان کا جذبہ تو یہ جذبے والے 700 لوگ ایسے حملہ کیا انہوں نے، 50 تو وہ بیٹھ کے باقی 600 جو بھی ہیں انہوں نے ایسی لڑائی لڑی نا کہ یہ 3000 کا لشکر بھاگا ہے چین سے، اور شروع میں یہ بھاگا ہے، اور وہ جو وہاں پہ گئے ہیں تو کچھ بتا رہے ہیں کہ اس سائڈ پہ بھاگے ہیں، وہاں وہ بھاگے ہیں، جب وہ اس سائڈ پہ بھاگے دوسرا ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں نا، یوں یہ احد پہاڑ یوں کھڑا ہے، یہاں جنگ ہو رہی ہے، وہ یوں بھاگے ہیں لیفٹ کو، یہ ادھر رمات کا وہ رمات پہ کہتے بھی اس لیے کہ تیر اندازوں کا ٹیلا، رما تیر یرمی، رما یرمی تیر اندازی کو کہتے ہیں نا، رما یرمی ارم یا سعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن وقاص کو کہا تھا اے سعد تیر بچا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، حضرت سعد بن وقاص کو بڑا خوبصورت سینٹینس یہ بھی ہے قرآن پاک میں تو اس میں تو ادھر وہ ٹیلا ہے، ادھر کافروں کے ساتھ لڑائی ہے، وہ یوں بھاگے ہیں، جو یوں بھاگے ہیں نا، تو یہ پیچھے ان کے بھاگے ہیں، وہ انہوں نے میدان چھوڑ کے بھاگے، اب وہ بھاگے ہیں تو اپنا سامان چھوڑ کے بیگ گھوڑے چھوڑ گئے، تلواریں چھوڑ گئے، اور سامان، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں، عورتیں بھی آئی ہوئی تھی، وہ ان کے ساتھ شعر گا رہی تھی ان کو اکسانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت کہا کہ اللہم بکا اسولو و بکا اقاتلو حسبی اللہ علیہ توکلت، ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وہ شعر پڑھتی تھی نا عورتیں جنگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، بہرحال وہ بھاگے۔ اب ان بھاگنے کی وجہ سے یہ جو رمات والے لوگ تھے نا، عبداللہ بن جبیر کے ساتھی، انہوں نے کہا فتح ہوگی، دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سریعاً نافرمانی کرنے کے سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بس انہوں نے حالانکہ تاکید کی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اب تو حکم رہا نہیں، وہ بھاگے ہیں، اور بھاگے ہم بھی شامل ہو جائیں اس میں غنیمت جمع کرنے میں، یا لفظ لوٹنے کا استعمال، غنیمت جمع کر کے اس کی تقسیم تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے نا، جیسے بھی غنیمت جمع کرنے میں ہم بھی شامل ہو جائیں، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ عبداللہ بن جبیر نے ان کو بہت سختی سے منع بھی کیا کہ حضور نے کہا تھا، لیکن وہ چونکہ 50 لوگ تھے نا، 14 لوگ رہ گئے تھے، باقی جو 36 تھے یہ چھوڑ کے گئے تھے، وہ 14 لوگ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جو رہ گئے تھے، خالد بن ولید ادھر تھے، یہ خصوصی طور پر خالد بن ولید کا نام لے رہا ہوں، اور دوسرا نام لے رہا ہوں، اس لشکر کا سردار کون تھا کافروں کے لشکر کا؟ ابو سفیان تھا، ابو سفیان، اور اسی لشکر میں وہ وحشی تھا جس نے حضرت حمزہ کو مارا ہے، یہ تین نام خصوصی طور پر یاد رکھیں، اس آیت میں اس کا تعلق نکلے گا، تو اس کو یہ تو رمات والے جب اتر گئے، خالد بن ولید جن کے پاس شاید 200 گھوڑوں کا رسالہ تھا اس کے ساتھ، ان نے جب دیکھ لیا نا کہ وہ جگہ خالی ہے، وہ پہاڑی کے سے پیچھے سے چکر کاٹ کے، یہ جو درا ہے نا، وہ پہاڑی اور اس کے درمیان میں یہاں سے نکل کر آئے ہیں، ان پر مسلمان تو ادھر لگے ہوئے ہیں نا، خالد بن ولید ادھر سے آئے ہیں جو حملہ کیا ہے، اور شاید انہوں نے آواز بھی دی، انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے خالد بن ولید آ گئے، وہ بھی واپس آ گئے، یہ مسلمان جو آپس میں گرے ہیں نا، اس وقت یہ نقصان ہوا، حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، اور 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، اور بہت سے صحابہ بھاگ بھی گئے، کہ یہ خبر اڑ گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، بہت سے صحابہ تو دل ٹوٹ گیا، بہت سے صحابہ میدان کو چھوڑ کر اپنے راستہ لے لیا، مدینے آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اکابر صحابہ بھی ان میں شامل ہیں، حضرت عثمان بھی ان میں آئے تھے، بہرحال وہ آگے ہم پڑھیں گے تو اس کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا کیا ان بھاگنے والوں کے ساتھ، اللہ نے اسی رکوع صورت میں منشن کیا ہوا ہے، تو صورت حال بہت خراب ہو گئی،
क्या हुआ, ये सब्र वाला एलिमेंट उन्होंने छोड़ा था ना। हुजूर ने कहा था कि बैठे रहो इधर, तो उनका सब्र, उन्होंने कहा बस खत्म हो गया, सब्र नहीं किया उन्होंने, वो बैठ गए, तो वो उतर गए, तो अल्लाह पाक ने मदद वापस की और इतना नुकसान हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद मौजूदगी में लफ्ज़ अगर बोल दें, अगर इसकी शिकस्त होगी, एक किस्म की शिकस्त है 70, लेकिन एक लिहाज से फतह भी है, वो फतह मैं बताता हूँ कैसे है। शिकस्त, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जख्मी हो गए। ऐसे कहते हैं कि एक वक्त सिर्फ 12 सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इर्द गिर्द रह गए थे, कुछ इधर उधर बिखरे हुए, कुछ दिल शिकस्ता, हुजूर फौत हो गए। हुजूर ने खुद आवाज दी है, इलैया इबादुल्लाह, इलैया इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदो मैं इधर हूँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो हुजूर की आवाज लोगों ने सुनी, फिर जमा हुए, लेकिन नुकसान तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे लोगों ने, अल्लाह ताला ने, पता नहीं किस किस ने अपनी पीठ पर तीर खाए, हुजूर को नुकसान, फिर भी उसके बावजूद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी है। एक दांत भी शहीद हुआ है। ये दो दांतों के साथ दाएं तरफ वाला ये वाला दांत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हुआ है। ये दो दरमियान वाले जो दांत है ना, इंसाइजर के साथ दो, ये वाला इंसाइजर जो दाएं तरफ वाला नीचे वाला दांत जो तीसरा वो शहीद हुआ है। और खोद की दो कड़ियां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार में या इधर माथे में घुस गई हैं, उसे पत्थर लगा, और इतना खून हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गशी तारी होगी, इतना खून निकला कि उनके गशी तारी होगी। और अगली आयत पढ़ने से पहले, हाँ, फैयान काली बुखारी भी नाम पढ़ चुके हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहबा उठा के जो वहाँ पे गए हुए हैं, वो देखें, ये पहाड़ है ना, रमात इधर है ना, तो इस जंग में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा के पीछे पहाड़ के ऊपर, ओहद के ऊपर साहबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थाम के ऊपर ले गए थे। वो जगह अभी भी लोग जाते हैं, देखते हैं, उस पहाड़ ओहद पे लेके गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये अल्फाज निकले हैं वहाँ पे कि वो कौम कैसे फलाह पा सकती है। वो अल्फाज मुझे अरबी के भी याद थे, लेकिन गलत ना हो जाए। वो कौम कैसे फलाह पा सकती है कि जो अपने नबी के साथ ये सलूक करे, ये सलूक करे, और उनको अल्लाह की तरफ बुलाता है, और ये जो अपने नबी के साथ ये सलूक करे। दाई के लिए और स्पेशली नबी के लिए कि कौम कैसे फलाह पा सकती है, अल्लाह पाक आगे फरमा रहे हैं, लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, इस काम में तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। इसका तर्जमा, लैसा लका, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, मिनल अम्रि शैउन, इस काम में किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। कि नबी कि कैसे फलाह पाएंगे, ये अल्लाह का काम है, कैसे फलाह पाएंगे, उस फिक्रे पर कहते हैं कि ये आयत है कि कैसे फलाह पाएंगे, ये अल्लाह का काम है हदायत देना। देखे ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारे इंसानियत को हदायत देने के लिए अल्लाह पाक है, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, सारे इंसानों के लिए आए। आज के इंसानों के लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि सारे इंसान अल्लाह से दोज़ख से बचकर जन्नत में जाने वाले बन जाएं। उनकी ख्वाहिश तो थी, सबसे ज्यादा ख्वाहिश तो अबू तालिब के लिए थी, है ना। उसके लिए अल्लाह पाक ने वहां पे कहा ना, कैसे वो क्या आता है कि इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खफा थे ना अबू तालिब के ईमान के बगैर चले जाने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में यूं कहा कि चाचा मेरे कान में एक दफा पढ़ दो, लेकिन उनमें वो अरब की वो जो शान थी ना, उनमें वो शान नहीं हुई कि लोग कहेंगे कि ये मरते मरते डर गया, मौत से डर गया अबू तालिब। शान होते हैं उन अरबों की, एक अपनी जोर होता है, उस शान में उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उन्हें। तो वो दूसरा हम बहुत खफा थे, उस खफा पे अल्लाह पाक ने कहा है ना, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, जिसे तू ज्यादा मोहब्बत करता है उसको ये हिदायत मिले, ऐसा नहीं है। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। तो लैसा लका मिनल, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं है। आओ यतूब अलैहिम, ये अल्लाह की मर्जी है, जिसको तौबा कबूल कर ले उसको उसकी तरफ लौट आए। आओ युअज़िबहुम, या अज़ाब दे, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, अज़ाब देगा तो जालिम तो है ना, मुशरिक हैं। मुशरिक को पिछली दफा भी कहा था कि सबसे बड़ा जुल्म तो ये कर रहे हैं ना, कि ठीक है जंग भी कर रहे हैं, वो भी जुल्म कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म तो वो मुशरिक हैं। अगर वो जालिम, अल्लाह चाहेगा तो वो जालिम की सूरत में उनको अजाब दे देगा, अल्लाह चाहेगा उनको तौबा की तौफीक दे देगा। वो तीन नाम मैंने खाया ना, स्पेशली याद रखें ना, इन्हीं तीन में से है ना, खालिद बिन वलीद और अबू सुफियान और वैशी,
वैशी का कारनामा तो आप जानते हैं ना, मुसलमा कज़्ज़ाब को कत्ल करने वाला वैशी था ना। ठीक है, उसने उस वक्त हजरत हमजा को शहीद किया, लेकिन उस वैशी ने मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे दाई नबूवत को, इतने बड़े फितने को उसको खामोश करने वाला ये था। फिर हजरत खालिद बिन वलीद के कारनामे तो हमारे अल्लाह पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से उसको सैफुन मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह पाक ने कहा कि अल्लाह के तलवारों में से एक तलवार है। इतने बड़े बड़े लोग अल्लाह पाक उसमें, अबू सुफियान ने भी जब ईमान लाए हैं तो फिर उन्होंने जंगों में शहादत उन्होंने की है, आंखें जाया की हैं उनके हुए हैं भारत। तो वही और ये तीन तो नाम मालूम है, और न जाने कितने उनमें मुसलमान हुए होंगे किसी वक्त। तो ये लैसा लगा मिनल अम्रि शैउन, ऐसी इस किस्म की बात ना करें। आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसका ये मतलब है। आप क्यों मायूस होते हो कि ये कौम फला नहीं पा सकती? फला देना अल्लाह पाक का काम है। तो लैसा मिनल औ यतूब अलैहिम औ युअद्दिम, ये अल्लाह का काम है। आप अपना काम करते करते जाए। देखें ना, कुरान पाक में ऐसे और कई मकामात हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुसूसी तौर पर कहा गया ना ना ऐसे ना करें। या नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, आप क्यों हराम करते हैं जो तुम अल्लाह पाक ने हलाल किया हो? वो शहद का जिक्र था, वो बीवी के कि मैं आइंदा शहद नहीं खाऊंगा। अल्लाह ने कहा क्यों नहीं खाएगा? हैं, जो अल्लाह ने हलाल किया तो आप कैसे हराम कर सकते हैं? और फिर अबसा व तवल्ला अन जाअहु उलामा, वो बात। तो जो दाई, बड़ी सख्त जिंदगी है उस वसल्लम की, इतने पुलसरा वो बात पुलसरात पे चलने वाली बात है, तो बड़ी मुश्किल उनको पोजीशन है उनकी। तो ये उसमें फिर अल्लाह आखिरी आयत में अल्लाह के पाक कहते हैं वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ भी है ये अल्लाह का है। अल्लाह अपनी मर्जी से ये सारे काम चलाता है। यगफिर लिमन यशाअ, जिसको चाहे वो माफ कर दे। वो फिर अल्लाह का अपना क्राइटेरिया है, किसको चाहता है उसका अल्लाह पाक ने अपना क्राइटेरिया, वो अल्लाह पाक ने क्राइटेरिया भी कहीं थोड़ा बहुत बयान भी किया हुआ है। वयतूब इलैहि मन अनाब, जो उसकी तरफ रुजू वाला होता है ना, अल्लाह पाक उसको फिर मगफरत। यगफिर लिमन यशाअ, जिसको वो चाहता है बख्श, व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, ये जो ऊपर जिसको चाहे वो अजाब दे। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह गफूर भी और रहीम भी दोनों मुबालगे के सीगे हैं, बहुत ज़्यादा मगफरत करने वाला है और रहम करने वाला है। तो ये शुरू हुआ है ग़ज़वा उहद के बारे में। इसके मुतल्लिक और बहुत से अहकामात अगले रकूओं में आ रहे हैं। उसमें ये जो वाक़यात हुए हैं, कुछ वाक़यात का ज़िक्र आइंदा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला, और जो उसके ख़ुसूसी अहकामात हैं वो अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़हन में एक सवाल आ रहा है।